preparing of brick. How to prepare brick. This is your first assignment. I have already written in the group. देख लिए होगे I think आप लोग. Have you seen? Yes, ma'am. Okay. I have already uploaded the note in the Google Classroom also. ये जो brick का PDF है मैं already upload कर दी हूँ. You can go and check and start writing. Okay. So Okay. first step was preparation of clay. Yes. Anyone saying anything? No, ma'am. Okay. So first step was preparation of clay. It consists of 6 different sub steps. Okay. So briefly मैं आपको remind कर देती हूँ. On soiling मतलब the top layer of the excavation pit जहाँ से निकलते हैं that is called excavation pit. So we have to unsoil the top 200 mm. Just a second. We have to remove the top 200 mm depth of soil because it contains vegetation matter and moisture and some insects. So we can't use that for the construction of the brick. So that part is known as unsoiling. Means top 200 mm of the excavation pit is excavated and thrown out. Next, digging. Next, you have to dig the excavation pit and collect the required amount of soil for the preparation of the brick. 1 ton, 2 ton as per your requirement, dig out. Okay. Next, after digging and collecting the soil, you have to clean out so that it will be free from any of the pebbles or vegetation matter or any unwanted substances like your polythene bags and all. Okay. Next, weathering. Weathering means dry out. The soil that was digged out from the pit contains some amount of moisture and some you can say cluster or lump formation. Soil का lump formation होके रहता है. So to soften the soil and to make it moisture free, we have to weather it. Weather it मतलब उसको spread कर देना है, कुछ टाइम छोड़ देना है वैसे ही. So that आपका due to solar radiation उसमें से जो moisture होगा वो evaporate हो जाएगा. Right? Next, blending. In the blending, you have to properly mix all the required ingredients in dry state. Just remember dry state. ब्लेंडिंग स्टेज में आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ऊपर जो आप पढ़े थे सिलिका अलुमिना एंड ऑल, जो कुछ भी डेफिशिएंट होगा उसको ऐड करना है इन द ड्राई स्टेट इटसेल्फ. देन आफ्टर प्रॉपर ब्लेंडिंग you have to add water and make it properly so that it will achieve required plasticity and you can give it a proper shape and size. For that either you can do that either in hand or leg. leg मतलब बहुत सारा मिट्टी रख दो, उसमें पानी मिक्स करके उसको उसके ऊपर चलने लगो. राइट. और इफ यू वांट इन ए ह्यूज अमाउंट, अगर आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में चाहिए, राइट, देन you have to take the help of equipment known as pug mill. ये पग मिल जस्ट जैसे आपका ग्राइंडर वैसे ही स्ट्रक्चर होता है, बट ग्राइंडर लिख के मत आ जाना. ये आपका एनिमल ड्रॉन होता है. ओके. इसका नीचे जो है बेस प्लेट रहता है, ऊपर खाली रहता है, सो दैट आप क्ले प्लस वाटर उसमें दे सको. यहाँ पे एक हैंडल रहता है जिसमें आप बुलक फिट कर सकते हो, वो रोटेट करते जाएगा एंड लाइकवाइज आपका जो क्ले है वो पक्ड होते जाएगा. पक्ड उसको टेम्परिंग भी बोलते हैं. And after proper tempering, you have to find out the puck clay or tempered clay from the downside itself. इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे. यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, या फिर कहीं भी कुछ डाउट यू कैन आस्क. I am. ओके. जस्ट यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है. जो आपका ब्लेंडिंग स्टेज है वहां पे भी आप मिक्स कर रहे हो इंग्रेडिएंट. ओके. एंड इन द टेम्परिंग स्टेज यहाँ पे आप वाटर मिक्स कर रहे हो. Okay, so blending is a dry mixing process, but tempering is a wet mixing process. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so after proper pugged or proper tempering, now take out the clay and now the time is to give a proper shape to the clay to make it a brick. जो rectangular shape होता है 9 into 9 to 19 और 10.5 into 22.5 into 7.5 जो भी है आपका, जो भी है, accordingly you have to prepare a mold. What is that mold? It is just like a frame. फ्रेम होता है जिसमें आप क्ले को देके उसको कंप्रेस करके you have to give a shape of brick. Just let me show you. Yes, this is the mold. This is multiple mold. Single भी होता है. Just a second. See,
इट मे बी आइदर ऑफ स्टील और आइदर ऑफ वुड। तो यहाँ पे देखो ये बीच में आपको दोनों साइड में जो है वो हैंडल है, ओके, उसको लेके आपको रखना है। और ये जो बीच का वैकेंट खाली पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्ले पूरा फिल करना है, कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम उसको उठा लो तो वहाँ पे एक ब्रिक फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर एक एक करके जाओगे बहुत स्लो होता है, दैट्स व्हाई वी प्रेफर मल्टीपल। यहाँ पे एट ए टाइम आपका 6 8 ब्रिक्स बन जाएंगे, राइट। या फिर अगर आपको ट्रेडमार्क देना है, जो फ्रग बनता है, फ्रग याद है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रग? Ma'am, the depression in one brick that is यस, usually तो अगर given हाँ, to have good friction फ्रिक्शन and फ्रिक्शन नहीं, interlocking, एडहेशन। यस, interlocking. एडहेशन और इंटरलॉकिंग, ओके। तो यहाँ पे देखो वो ट्रेडमार्क नहीं प्रोवाइड किया गया। इफ यू वांट टू प्रोवाइड ट्रेडमार्क यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ मोल्ड, ओके। नीचे आपका ट्रेडमार्क रहेगा, आप आर्ट को फिल कर दो तो ये आपका ट्रेडमार्क आ जाएगा। तो मोल्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दिस इज जस्ट लाइक ए फ्रेम, ओके। तो आपका ये मोल्डिंग प्रोसेस होता कैसे है? फर्स्ट, ये दो टाइप का हो सकता है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग, ओके। तो इन इंडिया बेसिकली हैंड मोल्डिंग ही होता है। ये मशीन मोल्डिंग का जो मशीन है वो थोड़ा कॉस्टली आता है, दैट्स व्हाई इंडिया में आपका लेबर बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, so that's why they prefer the hand molding, okay। तो हैंड मोल्डिंग में आपका अगेन दो टाइप का होता है, ग्राउंड मोल्डेड एंड टेबल मोल्डेड। मतलब अगर आप ग्राउंड में ही ये मोल्ड यूज करके ब्रेक बनाते हो दैट इज ग्राउंड मोल्डेड। सेम चीज अगर आप एक बड़ा सा टेबल के ऊपर बनाते हो दैट विल बी टेबल मोल्डेड, ओके। सो हाउ टू यूज दैट मोल्ड, यूज कैसे होता है? अगर आप ग्राउंड मोल्डेड बनाना चाहते हो, राइट, जो कि थोड़ा लो क्वालिटी होता है, क्यों होता है आई एम एक्सप्लेनिंग। तो एक ग्राउंड है, पूरा जो बड़ा ग्राउंड है उसको पहले क्लीन कर दो, राइट। ग्राउंड भी आपका क्ले का ही होता है, ग्राउंड में भी सॉइल ही होता है ना, कोई भी ग्राउंड हो तो वहां पे वो स्टिक करने का चांसेस होता है, दैट्स व्हाई स्प्रिंकल सम सैंड, स्प्रिंकल सम सैंड ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। जो ग्राउंड आप चूज किए हो वहां पे कुछ सैंड स्प्रिंकल कर दो, राइट, उसको क्लीन करके सैंड स्प्रिंकल कर दो। नाउ द ग्राउंड इज रेडी। अब क्या करना है आपका, ये जो बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ पे, ओके, जस्ट ए सेकेंड, ये ग्राउंड आपका रेडी है, इसके ऊपर सैंड स्प्रिंकल हो गया, बहुत स्मॉल स्मॉल साइज का सैंड स्प्रिंकल हो गया, सो दैट आपका जो ब्रिक है वो स्टिक ना हो जाए नीचे, ओके। नाउ आप जो मल्टीपल हो, सिंगल हो, जो भी कुछ मोल्ड हो उसको लेके बस सिंपल रख दो उसको, और उसके अंदर आपका जितना भी क्ले है देके उसको कंप्रेस करके ब्रिक का एक्स्ट्रा जो है उसको स्ट्राइक कर दो, एक्स्ट्रा जो पोर्शन है उसको स्ट्राइक आउट कर दो। और अभी क्या है, और एक चीज है, ये जो मोल्ड है उसको यूज करने से पहले बिफोर यूजिंग दैट either dip that mold in water or you can sprinkle sand so that ये साइड साइड में है ना, यहाँ पे क्ले आपका स्टिक होके ना रहे, ओके। सो दैट एक ब्रिक आप बनाने के बाद सडनली आप दूसरा ब्रिक के लिए उसको यूज कर सकते हो। मतलब स्टिकीनेस को रिमूव करने के लिए आपका यहाँ पे, जैसे आपका नॉर्मल किसी भी खाना बनाते टाइम जो कुछ कुछ इक्विपमेंट यूज होता है उसमें खाना स्टिक ना हो बोल के ऑयलिंग करते हैं, बेसिकली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केक उसको फ्रेम को ऑयलिंग कर देते हैं, देखे हो, हैव यू सीन? Yes, ma'am. कोई भी चीज जिसमें आपका फ्रेम यूज होता है उसमें चीजें स्टॉक ना हो बोल के ऑयल यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऑयल यूज नहीं करना है, हियर वी टेक द हेल्प ऑफ वाटर और सैंड। यहाँ पे आइदर उसको वाटर में डिप करके यूज करो और सैंड, यहाँ पे सैंड स्प्रिंकल कर दो। बट वी जनरली डोंट प्रीफर सैंड, क्योंकि सैंड अगर आप स्प्रिंकल करते हो, राइट, एक तो ग्राउंड आपका सैंड स्प्रिंकल है, प्लस ये सराउंडिंग भी अगर आप सैंड स्प्रिंकल करते हो तो जो ब्रिक आपका बनेगा इट विल बी ए रफ वन, उसका सरफेस स्मूथ नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो ब्रिक आपका बनेगा ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक, उसका क्वालिटी थोड़ा रफ होगा। तो जहाँ पे आप उसको आउटर सरफेस में यूज करना चाहते हो विदाउट प्लास्टरिंग, यू कांट यूज दिस टाइप ऑफ ब्रिक। So in short, you can say the ground molded brick are either second class or third class brick, not first or second class. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. तो एक बार आप इसको यूज कर लिए, अगेन आप जब इसको उठा रहे हो फिर से पानी में डिप करो या फिर से सैंड स्प्रिंकल करो, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है।
दिस इज अ ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक. बहुत सिंपल है, इसको डिटेल में इसलिए मैं थोड़ा फास्ट मूव कर रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. अब इसको एक फ्रेम लो, इसमें सॉइल पूरा अच्छे से दे दो जो आपका ऑलरेडी पक्ड है. ओके, फिर उसको कंप्रेस करके एक्स्ट्रा जो है स्ट्राइक आउट कर दो, एक ब्रिक आपका रेडी. फिर उसको उठा लो, पानी में डिप करो या फिर सैंड स्प्रिंकल करो, अगेन कंटिन्यू द सेम प्रोसीजर. और इसके लिए आपका मैनुअल लेबर चाहिए होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में लेबर चाहिए होता है. ओके, नेक्स्ट आप आ जाओ टेबल मोल्डेड. सेम चीज है, यहाँ पे देखो फर्क क्या है मैं लिख दी हूँ. और एक चीज याद रखना, फॉर द ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक इट इज टू डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द फ्रग, क्योंकि उसका सरफेस ऑलरेडी बहुत रफ होता है, तो वहाँ पे फ्रग प्रोवाइड करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो फ्रग का शेप भी आपका डेफिनेट नहीं आएगा. तो लेट मी एक्सप्लेन. जो लोग मेरे लैब में हो उनको तो मैं एक्सप्लेन कर दी थी, जो लोग दूसरे लैब में हो मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. फ्रग इज जस्ट लाइक ए डिप्रेशन प्रोवाइड ऑन द ब्रिक. आइदर ये आपका इस टाइप का हो सकता है और इट मे बी ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. ओके, ये दोनों शेप का हो सकता है. और उसका जो डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ डिप्रेशन, ये 2 सेंटीमीटर, मैक्स टू मैक्स 2 सेंटीमीटर होता है, 20 mm. ओके, और इसका लेंथ ये आप कुछ भी रख सकते हो, नो इशू. ओके, तो ये प्रोवाइड क्यों करते हैं, सो दैट व्हेन यू विल यूज दैट ब्रिक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक मैसनरी, एक ब्रिक के ऊपर आप दूसरा ब्रिक जब ले करते हो, राइट, सॉरी दिस इज लाइक दिस, यहाँ पे जो मोटर प्रोवाइड करते हो प्लस जो मोटर है, ये फ्लग भी कुछ अमाउंट में उसको एब्जॉर्ब करेगा, ये भी फिल होगा, और इट विल प्रोवाइड बेटर एडहेशन और बेटर बॉन्डिंग बिटवीन टू ब्रिक्स. This is the first requirement. And the second one, it impacts the name of the manufacturer. Okay, जो ट्रेडमार्क होता है ये आपका फ्रग में प्रोवाइड किया जाता है. ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था. What do you mean by frug? What is the purpose of providing frug? यहाँ पे लिखा हुआ है, you can see. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट आप आ जाओ टेबल मोल्डेड. सेम प्रोसेस, दिख तो जो मैं अभी बोली पूरा सेम है. इंस्टेड ऑफ ग्राउंड हियर वी विल यूज ए टेबल, एंड बिकॉज वी आर यूजिंग ए टेबल वी ओंट स्प्रिंकल सैंड. यहाँ पे हम लोग सैंड स्प्रिंकल नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली क्लीन आउट, उसको पोछा लगा देते हैं यूजिंग एनी कॉटन और एनीथिंग. ओके, जस्ट वाइप इट आउट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रोसेस. So because your surface of the table is too smooth, you can have a definite shape of the brick. The surface of the brick will be smooth one. And in case of table molded brick, we don't use sand or we don't sprinkle sand inside the mold to avoid the stickiness. Here we use either grease or water. Grease पता है सबको, जो आपका व्हीकल में यूज होता है फॉर द स्मूथनिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल. ग्रीस सबको पता है ना, ग्रीस Yes, पता है ma'am. कि नहीं पता है. Yes, हाँ मैम, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Just like oil, वो oil जैसे ही होता है. Okay, so here in case of table molded brick, before using that mold, either we use grease inside the frame or we dip it in water. So two main difference between ground molded and table molded. First one, we sprinkle sand on the ground before construction of the process or before molding the brick. But in case of table molded, we move the floor of the table. In case of ground molded, we sprinkle sand inside the mold to avoid the stickiness. But in case of table molded, we use either grease or we can use water. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So the brick that is formed from the ground molded brick are sand faced brick. उसका surface rough होता है, that's why it is known as sand faced brick. But the brick that is formed in table molded brick, it has smooth surface. That's why it is known as slope molded bricks. Remember these two words. Slope molded, टेबल मोल्ड, जो टेबल मोल्डेड ब्रिक होता है उसको स्लॉप मोल्डेड ब्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि उसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है. और जो ग्राउंड मोल्डेड है उसका सरफेस बहुत रफ होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सैंड फेस्ड ब्रिक्स और सैंड मोल्डेड ब्रिक्स. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और कंफ्यूज हो रहे हो? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैंड मोल्डेड और सैंड फेस्ड ब्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्लॉप मोल्डेड ब्रिक? इज इट क्लियर? Yes, ma'am.
बच्चे बाकी सब कर क्या रहे हो मेरे को बताओ, मैं तब से मैं कुछ पूछूं तो मैडम बस है 2-3 सब रिप्लाई आता है। हेलो Yes, ma'am. Clear. यस मैम Yes, है ma'am. मैम सब Clear है, मैम। ma'am. नेक्स्ट ये हो गया आपका हैंड मोल्डिंग, जहाँ पे आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में लेबर चाहिए होते हैं, 100-200 लेबर चाहिए होते हैं, जो अनस्किल्ड होने से भी चलेगा, नो नीड ऑफ स्किल्ड लेबर। द नेक्स्ट वन इज मशीन मोल्डिंग, व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ मशीन। ये जो चीज आप हाथ में कर रहे थे, पुट द मोल्ड, फिर उसको उठाओ, फिर दूसरा मोल्ड रखो, फिर प्ले, नो नीड ऑफ ऑल दैट। मशीन मोल्डिंग में आपका डायरेक्टली ये सब पूरा मशीन में ही होके आपको नीचे एक फ्रेम, एक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। ये आपका सपोज मशीन है, ओके, यहाँ पे मशीन के नीचे एक होल रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बेस प्लेट लगाना होता है, जहाँ पे ये होल से निकल के ब्रिक यहाँ पे गिरेगा। बहुत ज्यादा हाइट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गिरेगा बहुत हाइट से तो ये ब्रिक शेप खराब हो सकता है, इसमें भी और मिस शेप्ड, उसका शेप खराब हो सकता है। तो इसको बहुत कम हाइट में एक बेस प्लेट लगा देते हैं, जिसमें आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आटा चक्की जब गए हो, आटा चक्की जहाँ पे देखा Conveyor है belt. यस कन्वेयर, राइट, ऐसे, तो यहाँ पे एक कन्वेयर फिट रहता है, और ये इसको लेके फिर मतलब दूसरी तरफ ले जाता है, जहाँ पे उसको कलेक्ट करके आपको ड्राई के लिए लेना है, राइट। तो ये एग्जैक्टली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका वेट और दूसरा ड्राई। ड्राई मोल्डिंग मशीन एंड वेट मोल्डिंग मशीन। तो ड्राई मोल्डिंग मशीन में आपको करना क्या होता है, जो क्ले है उसको डायरेक्टली ड्राई स्टेट में उसको डाल दो। तो यहाँ पे आपको पग मिल नहीं चाहिए होता है। इन केस ऑफ ड्राई क्ले मशीन यू डोंट नीड ए पग मिल। पग मिल क्यों यूज होता है आपका, वाई द पग मिल इज यूज्ड? मैम हार्ड करने के लिए ब्रिक को. क्या करने के लिए? In which step of the preparation of clay the pug mill is used? अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। Anyone from girl side? Why the pug mill is used? Yes, anyone can? हाँ, Ma'am, अभी लेफ्ट होना to स्टार्ट हो गया। ma'am, to uniformly mix all the components and to avoid like the lumps and all that develop. मैम To यूनिफॉर्म give टेक्सचर हो जाएगा। sufficient plasticity, अब उसको प्रॉपरली प्लास्टिसिटी देने के लिए ये यूज होता है, ओके राइट? रिया, रिया चौधरी, यस मैम। हाँ, कौन सा स्टेप है ये तो एक्सप्लेन कर दिया, क्यों होता है, कौन सा स्टेप होता है जिसमें ये यूज होता है पग मिल? सबसे फर्स्ट स्टेप. सबसे फर्स्ट स्टेप में यूज होता है ये, सीरियसली? ओके, एनीवन एल्स? पग मिल क्यों यूज होता है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले आई हैव डिस्कस्ड। नहीं, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हो, मैं अटेंडेंस दे दूंगी, ऑल प्रेजेंट, यू कैन लीव नाउ देन। अगर नहीं पढ़ना, नो इश्यू, यू कैन शेयर इट। नहीं पढ़ना ना, मैं अटेंडेंस चाहिए, आई विल गिव, आई हैव नो इश्यू गिविंग अटेंडेंस। आपको बैठ लगा के अटेंडेंस नहीं देके मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। इफ यू वांट अटेंडेंस आई कैन गिव, यू कैन लीव नाउ। जिसको नहीं सुनना है यू कैन लीव। हाँ, हो सकता है 2-3 क्लास पहले पढ़ाऊँ या कल का भी अगर हो आप भूल जाओ, दैट इज ओके, बट टुडे जस्ट बिफोर 5 minutes आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द यूज ऑफ पग मिल, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई। एनीवन? नो वन? हाँ, एक दो बस रिप्लाई किए, उनका आंसर भी सही था। आई एम नॉट टेलिंग टू देम, बट रेस्ट क्या कर क्या रहे हो आप लोग? ऑनलाइन एग्जाम होगा, आराम से कुछ बिना पढ़े कहीं से कुछ मोबाइल वगैरह यूज करके पास हो जाना है, ठीक है? अभी तो पास हो जाओगे। आफ्टर 4 year व्हाट यू विल डू, जब कंपनी में ज्वाइन करोगे वहां पे जाके कैसे चीट करोगे? एनीवे, आपको पढ़ना है बोलो, नहीं पढ़ना है नो, डजंट मैटर, आई हैव टू टीच। So pug mill is used in the, let me show you, the last phase of preparation of clay, that is tempering phase. It is used to provide proper plasticity.
so that you can give it a proper shape or you can properly mold it. Okay, so when you are using dry clay machine, the machine itself take the role of pug mill. Okay, ये वहीं से उसको पग भी करता है, प्लस आफ्टर पगिंग इट, आफ्टर गिविंग इट सफिशिएंट प्लास्टिसिटी, वो वहीं पे उसको प्रेस करके डेफिनेट शेप देता है, एंड आफ्टर दैट उसका जो ओपनिंग होता है वहां से आपका जो ब्रिक है उसको आप कलेक्ट कर सकते हो एंड यूजिंग ए कन्वेयंस उसको आप ले सकते हो टुवर्ड्स अनदर प्लेस. So when you are using dry clay machine, you don't have to use a pug mill because it performs the role of pug mill as well as the machine that is used for molding. Is it clear? So यहाँ पे जो brick है आपका ये प्रेस होता है, मतलब यहाँ पे एक फ्रेम होता है जो मशीन के अंदर है. ओके, विद इन द मशीन इटसेल्फ यहाँ पे एक मशीन होता है, कंप्रेशन मशीन जैसे, और ये आपका नीचे बहुत सारा फ्रेम्स रहता है जो मोल्ड, राइट. तो यहाँ पे ये इसको क्ले को देके प्रेस करता है, प्रेस होने के बाद ये डेफिनेट शेप में आ जाता है और फिर इसको कलेक्ट करना होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रेस्ड ब्रिक, बिकॉज ये प्रेसिंग प्रोसेस से होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रेस्ड ब्रिक. ओके मैम. हाँ मैम मैम जो प्रोसीजर्स में जैसे बहुत सारा जैसे मशीनरीज के जो थ्रू ब्रिक्स बनाया जाता है मैम, हाँ तो हाँ. उसका मैम जो वो जो फ्रग जो बनता है मैम, उसका वो मैम वो भी डाउनवर्ड फेस्ड ही रहता है कि वो जो मशीन जब उसको प्रेस करता है ऊपर से मैम उस टाइम वो शेप आ जाता है? नहीं, देखो नीचे उसका ट्रेडमार्क नहीं रहता है. सपोज पूरा मशीन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ मैं, नीचे का बेस मैं आपको दिखा रही हूँ. सपोज दिस इज द बेस ऑफ द मशीन. ओके, यहाँ पे आपका ये जो फ्रेम है, देखो जो आपका मोल्ड यूज होता है इन केस ऑफ हैंड मोल्डिंग, वो दोनों तरफ से खाली रहता है. ठीक है, ये दोनों तरफ से खाली रहता है. बट इन केस ऑफ मशीन मोल्डिंग ये नीचे का आपका बेस प्लेट रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फ्रेम ऐसे रहता है, और यहाँ पे ऊपर आपका एक प्लंजर जैसे स्ट्रक्चर रहता है जो इसको प्रेस करता है. क्ले फिल होने के बाद उसको प्रेस करता है. तो ये प्लंजर का शेप ऑलमोस्ट ऐसे होता है, लाइक दिस, मतलब रेक्टेंगुलर फ्लैट प्लेट जैसे होता है, और वहीं पे आपका ट्रेडमार्क रहता है. ठीक है, तो जब ये ऊपर से ब्रिक को प्रेस करेगा तो वहीं पे इसका फ्रग प्लस ट्रेडमार्क आ जाएगा. इज इट क्लियर? यस मैम, यही पूछ रहे थे. जैसे मैम हाँ हैंडमेड वाला में तो वो नीचे मैम उसका ट्रेडमार्क दे देता है क्योंकि उसमें कुछ हाँ ये नहीं रहता है, बट हाँ, इसमें तो वो क्योंकि दे यहाँ पे सकता है. ऊपर से प्रेस होता है, तो ये हाँ. जो प्लेट यूज होता है फॉर द प्रेसिंग ऑफ द ब्रेक, यही पे आपका ट्रेडमार्क रहता है, राइट. जब आप यस. ऊपर से उसको प्रेस करोगे तो वो ब्रेक में ट्रेडमार्क यहाँ पे आ जाएगा. इज इट क्लियर? और ये जो स्टेप है ये आपका फॉलो होता है इन केस ऑफ ड्राई मिक्स और ड्राई मोल्डिंग मशीन. ओके, यहाँ पे आपका ब्रिक प्रेस होके रेडी होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रेस्ड ब्रिक. बट जो वेट क्ले मशीन होता है, ओके, और इसको बोल सकते हो आपका प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग मशीन. यहाँ पे आपका जो पग क्ले है उसको लेके एक मशीन में डाल दिया जाता है. यहाँ पे पगिंग मशीन के अंदर नहीं हो सकता है, ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको पग क्ले डाल देना है जो ऑलरेडी प्रिपेयर है, राइट. और यहाँ पे बहुत सारा वायर जैसे स्ट्रक्चर रहता है. ओके, यहाँ पे वायर नाइफ जैसे स्ट्रक्चर बोल सकते हो. ये आपका हो गया. इसमें जो ओपनिंग रहेगा नाइफ जैसे पूरा शार्प रहेगा ओपनिंग. ओके, और यहाँ पे जब ऊपर से प्रेस होगा, यहाँ पे आपका प्रेस होता है, वहां से प्रेस होता है, बट नीचे कोई फ्रेम नहीं रहता, यहाँ पे डायरेक्ट ओपनिंग रहता है. दिस आर द ओपनिंग्स. यहाँ पे कोई भी फ्रेम नहीं है, ओपनिंग्स है, याद रखना, राइट. तो यहाँ पे जो मल्टीपल, अगर सिंगल है तो सिंगल रहेगा, या फिर मल्टीपल रहेगा तो यहाँ पे प्रेस करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है. बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपका उसमें क्या था, फ्रेम्स था जिसमें वो प्रेस होकर ब्रिक्स फॉर्मेशन होता था. बट यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे ये फ्रेम्स नहीं होता, ये बस होल होता है. और जब ऊपर से पूरा टोटल ब्रिक जो टोटल क्ले है उसको मतलब पूरा यहाँ पे अगर आप फोर्स देते हो, राइट, तो ये सब नीचे आएगा और यहाँ पे कट होके आपका ब्रिक फॉर्मेशन होगा, कट होके. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वायर कट ब्रिक्स. यहाँ पे प्रेस नहीं हो रहा है, प्रेस हो रहा है बट डायरेक्टली प्रेस होके ब्रिक नहीं निकलता है, कट होके निकलता है.
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वायर कट ब्रिक्स। यहाँ मैम पे लिखा हुआ है देखो, वायर कट ब्रिक्स। हाँ, मैम सो स्ट्रेंथ वाइज मैम कौन सा ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि उसमें तो मैम प्रेस हो रहा है तो वो तो शायद ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ड्राई ड्राई वाला क्ले में। मशीन इज टू गुड, और ये बहुत कॉस्टली भी है। ये जो ड्राई क्ले मशीन है ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है, फॉगिंग पे वहीं पे हो रहा है, जितना रिक्वायर अमाउंट वाटर बस आप ऐड कर दो। तो ये जो प्रेशिंग, क्या बोल सकते हो आप इसको, प्रेस्ड ब्रिक जो है, ये आपको ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ ज्यादा आता है। तो जो आपका बेसिकली इंडिया में तो ये ड्राई क्ले मशीन में बहुत रेयर जगह में यूज होता है। बेसिकली इसको ऑलमोस्ट नल ही आप बोल सकते हो, क्योंकि जितना हमारे यहाँ पे एक ब्रिक का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना आता है, 5 रुपीज। अगर आप ड्राई क्ले मशीन यूज करके करो तो उसका प्राइस बहुत हाई आ जाएगा, राइट, अनइकोनॉमिकल हो जाता है फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। तो बेसिकली इंडिया में ये बहुत कम यूज होता है। जहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, देन ओनली यू कैन यूज दैट। ओके, इंडिया में आपका बस ये टेबल मॉल्डेड तक ही यूज होता है। प्लास्टिक क्ले मशीन भी बहुत रेयरली यूज होता है, क्योंकि इंडिया में आपका लेबर बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, राइट। तो मैन पावर बहुत इजीली अवेलेबल है, तो इंडिया में हैंड मॉल्डिंग को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes. Okay, so Yes, can ma'am. you differentiate wire cut brick and pressed brick? वायर कट ब्रिक क्या है, प्रेस्ड ब्रिक क्या है, डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट? यस मैम। ओके, और एक था आपका सैंड फेस्ड ब्रिक और स्लॉप मोल्डेड ब्रिक, इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सैंड फेस्ड ब्रिक एंड स्लॉप मोल्डेड ब्रिक। अभी कुछ टाइम पहले मैं आपको बोली, जो ग्राउंड मोल्डेड से बनता है दैट इज सैंड फेस्ड ब्रिक, क्योंकि मॉल के अंदर सैंड स्प्रिंकल करते हैं। और जो स्लॉप मोल्डेड है वो टेबल मोल्डेड होता है, क्योंकि उसको पानी में डीप करते हैं फिर बनाते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर हो या कंफ्यूजन है? यस मैम क्लियर। Clear, ma'am. ओके, नेक्स्ट ड्राइंग प्रोसेस। अभी आपका ये जो ब्रिक रेडी हो गया, अभी उसको देखो बहुत मतलब सॉफ्ट होता है। जस्ट आप उसको मॉल कर दो, फिर उसको टच करो तो वो उसका शेप बिगड़ जाता है, मतलब वो कंडीशन उसका ऐसा होता है कि वो सॉफ्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मॉइस्चर। तो उसको आपको कम करना है। तो टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट यू हैव टू ड्राई द ब्रिक्स। कब तक ड्राई करना है? अंटिल द मॉइस्चर कंटेंट लाइज 2%। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, जब तक आपका मॉइस्चर कंटेंट 2% कम नहीं हो जाता, आपको तब तक उसको ड्राई करना है। ठीक है, इट में टेक्स 1 मंथ 2 मंथ। अगर आपका एरिया बहुत सैम्पी है, मतलब बारिश बहुत ज्यादा होता है, तो ये 6 मंथ भी ले सकता है। बट अंटिल द मॉइस्चर कंटेंट लाइज बिलो 2% आप उसको ड्राई करना है। तो अगर आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में जल्दी चाहिए, यू कैन गो फॉर आर्टिफिशियल ड्राइंग बाय स्प्रेइंग हॉट एयर। उसके ऊपर हॉट एयर आप स्प्रे करोगे, राइट, तो वो जल्दी थोड़ा सूख जाएगा। बट नेचुरली वी प्रेफर नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस, मतलब उसको बस खुला पूरा सन में छोड़ दो, वो ड्राई आउट हो जाएगा। बट दिस नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस इज नॉट एडप्टेड इन मानसून सीजन। बारिश हो रहा है मानसून सीजन में, ये ड्राइंग प्रोसेस अडप्ट नहीं किया जाता है, नेचुरल ड्राइंग। इन दैट केस वी प्रेफर द आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? ड्राइंग बहुत सिंपल है, नेचुरली डायरेक्टली उसको सन के अंदर, मतलब जहाँ पे वो ग्राउंड मोल्डेड हुआ है ना, वहीं पे उसको छोड़ देते हैं तो भी ड्राई हो जाता है। बट अगर टेबल मोल्डेड है तो उसको शिफ्ट करना होता है थ्रू एनी ऑफ द स्प्रेड। वी लेट इट ड्राई फॉर 1 month 2 month और मैक्स 6 months it may need until the moisture content lies below 2%. Is it clear? Yes, ma'am. तो ड्राइंग दो टाइप का हो गया, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरल जो आपका नॉर्मल सन में आप छोड़ देते हो। आर्टिफिशियल कैसे होगा? आर्टिफिशियल बस उसके ऊपर हॉट एयर आप स्प्रे करो, या फिर बहुत बड़ा साइज का ओवन भी यूज होता है टू स्प्रे द हॉट एयर। ओके, ड्राइंग तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, द नेक्स्ट वन इज बर्निंग। अभी कंप्लीटली जब वो ड्राई हो जाएगा उसका डेफिनेट शेप आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको टेम्पररी स्ट्रक्चर्स यूज करना होता है, फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स वी कैन डायरेक्टली यूज द सन ड्राइड ब्रिक्स। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन काम करना होता है, वहाँ पे टेम्पररी आपको स्टोर हाउस बनाना होता है,
या फिर टेम्पररीली आपको जो वर्कर्स के लिए घर बनाना है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ उसको तोड़ना ही है आपको, राइट? So in that case, you can directly use the sun-dried bricks. But if you want to use that for any of the permanent structure, you have to burn it properly. Is it Yes, ma'am. okay? Yes, So ma'am. the temperature of burning. This is one very important question. The temperature of burning of the bricks should be 650 degree centigrade to 1100 degree centigrade. उसका 650 से 1100 तक हो सकता है. 650 से कम नहीं होना चाहिए, 1100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द ब्रिक, उसमें लाइम कंटेंट कितना है, उसका बाकी सब इंग्रेडिएंट्स कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कौन सा क्वालिटी का ब्रिक आप फॉर्मेशन करना चाहते हो, व्हाट इज द पर्पस, उसी बेसिस में आपका ये वैरी करता है. मिनिमम शुड बी 650 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम होगा तो प्रॉपर उसका रेड कलर एंड प्रॉपर बॉन्डिंग ऑफ द जो पार्टिकल्स नहीं हो पाएगा. 1100 से ज्यादा कर देते हो तो वो ओवर बर्न हो जाएगा, मतलब जो लाइम होते हैं वो ज्यादा बर्न हो जाएगा और वो ब्रिटल हो जाएगा. इज इट क्लियर? So the temperature of burning is 650 to 1100 degree centigrade. Okay? Yes. Okay, next. The burning process can be conducted in two ways. Either you can use a clamp or you can use a kiln. K-I-L-N, kiln. Okay? तो ये जो क्लैम्प बर्निंग है ये एक टेम्पररी प्रोसेस है. ओके, मतलब ये जो क्लैम्प होता है ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, दिस इज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर. गांव में जो चूल्हा होता है देखियो, बहुत पहले यूज होता था, आजकल तो कोई यूज करता भी नहीं है, राइट? अब इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो. वो चूल्हा जो है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, आप जहाँ पे भी चाहो मिट्टी में उसको बना सकते हो, राइट? एग्जैक्टली सेम थिंग है ये क्लैम्प बर्निंग प्रोसेस. अब जहाँ पे ब्रिक को बर्न करना चाहते हो वहां पे यू हैव टू प्रिपेयर ए क्लैम्प, एंड आफ्टर द बर्निंग ऑफ द ब्रिक वो क्लैम्प को आपको डिस्ट्रॉय करना होता है. एक क्लैम्प एक ही बार यूज हो सकता है, रिमेंबर दैट. वन क्लैम्प कैन बी यूज्ड ओनली वंस. बट ये जो किल्न होता है ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक ए बिग साइज हॉट ओवन. ये बहुत बड़ा साइज का एक हॉट ओवन, जैसे माइक्रोवेव ओवन सबके पास होता है, कुछ आइडिया है माइक्रोवेव ओवन? एग्जैक्टली वही सेम होता है आपका किल्न बर्निंग. उसको बहुत बड़ा साइज कर दो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए किल्न. क्लैम्प क्या होता है? आपका चूल्हा जैसे होता है. यस. मैम किल्न, मैम वो जो लंबा सा जो रहता है वो वाला जो टावर सॉर्ट ऑफ रहता है मैम. वो भी फिर 2-3 टाइप का होता है, मैं पढ़ाऊंगी आगे, है आपका अच्छा, ओके मैम. इनका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, देखो मैं दिखाऊंगी आपको. वो भी फिर 2-3 टाइप का होता है. बट जो क्लैम्प होता है, ओके, क्लैम्प बर्निंग में क्या है आपका, मैं उसको ब्रीफली आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ. तो आपके पास ड्राइड ब्रिक है, तो यहाँ पे एक टेम्पररी उसी ड्राइड ब्रिक का एक वॉल बनाया जाता है, ठीक है? और नीचे जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लाइन करके ऐसे आपका ग्राउंड तैयार किया जाता है. ओके, फिर यहाँ पे फ्यूल दे दिया जाता है. फ्यूल यहाँ पे यूज क्या होता है? ऑल द मेटेरियल इट इज अवेलेबल इन द विलेज एरिया, जैसे आपका काउ डंक, सम वुडन डस्ट, जो सॉ डस्ट होता है, कारपेंट्री वर्क करते टाइम डस्ट वगैरह निकलता है ना, वो सब, या फिर सम सूखे पत्ते एंड ये सब यूज होता है. तो एक लेयर का आपका यहाँ पे फ्यूल दे दिया गया, फिर 2-3 लेयर का ब्रिक्स, यहाँ पे 2-3 लेयर का ब्रिक्स रख दिए, फिर इसके ऊपर एक लेयर का फ्यूल दे दो. ओके, फिर 2-3 लेयर का ब्रिक्स, फिर फ्यूल, फिर 2-3 लेयर का ब्रिक्स, until it achieves 2 to 3 मीटर हाइट. 2 to 3 मीटर हाइट होने तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. एक लेयर फ्यूल, 2-3 लेयर ब्रिक्स, फिर एक लेयर फ्यूल, 2-3 लेयर ब्रिक्स. जब इतना हाइट का हो गया, अभी क्या करना है, इसको नीचे से इग्नाइट कर दो, नीचे से आग लगा दो, और ये जो टोटल स्ट्रक्चर है इसको मड से कवर कर दो, मड से कवर कर दो, ठीक है? और उसको ऐसे ही छोड़ देना है फॉर 1 to 2 months. कैन यू इमेजिन? इसको 1 से 2 मंथ लग जाता है फॉर कंप्लीट बर्निंग. इसी से टू स्लो प्रोसेस. और एक चीज है यहाँ पे, ये 1-2 महीने तक आप इसको खोल नहीं सकते हो. तो अगर बीच में आग बुझ गया, ज्यादा हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, ये सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ये तो इमेजिन इतना फ्यूल देना है कि जैसे ये 1-2 महीना तक पूरा कंप्लीटली बर्न होते रहे. कितना रहता है ठीक है? फिर? हम्म? फ्यूल कितना रहता है फिर भी?
डिपेंड करता है आप कितना हाइट का बनाते हो, कितना एरिया का बनाते हो, राइट। बहुत स्मॉल बनाते हो तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देना है। अगर ये इतना छोटा भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, आपका हॉस्टल बिल्डिंग जितना बड़ा है ना, ये उतना बड़ा बड़ा साइज का होता है, तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको फ्यूल पूरा अंदर से देना होता है। और एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फ्यूल जो है, इसको एक बार दे के कवर कर लिए ना, यू कांट कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूल। तो हो सकता है बीच में फ्यूल खत्म भी हो जाए, कभी कभी होता है। तो और एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो नीचे का है ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बंद हो जाता है, और ये ऊपर का है ना, ये आपका अनबंद हो जाता है, मतलब कंप्लीटली बंद नहीं हो पाता है। बीच में कुछ होता है जो कि आपका अच्छे से बंद होता है, जिसको हम लोग क्लास ए और क्लास बी के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो जितना भी ब्रिक्स आपको मिलेगा, ऑल विल नॉट बी यूनिफॉर्म वन। ये यूनिफॉर्म ब्रिक आपको नहीं मिलेगा, कुछ ओवरबंड मिलेंगे, कुछ अंडरबंड मिलेंगे, कुछ आपको मिडिल पोर्शन है जो कि कंप्लीटली बंद ब्रिक मिलेंगे, राइट। सो बेसिकली अभी ये इतना यूज नहीं होता है, क्योंकि एक तो स्ट्रक्चर टेम्पररी है, बारिश वगैरह हो गया तो गया ये। मॉनसून सीजन में इसके बिल्कुल कोई काम ही नहीं है, राइट। फ्यूल खत्म हो गया, ब्रिक बीच में, या फिर एक्सेस पूरा जल गया, या फिर कुछ भी हो गया, यू कांट कंट्रोल इट, इट्स बियॉन्ड कंट्रोल। एक बार इग्नाइट कर दो, बस आपका काम खत्म। बट फायदा क्या है, बहुत इकोनॉमिकल है, आराम से इसको कहीं पे भी कर सकते हो, राइट। और क्या फायदा है, इसके लिए कोई स्किल्ड लेबर या स्किल्ड सुपरविजन नहीं चाहिए होता है, किसी को भी बता दो कर सकता है। तो जहाँ पे ब्रिक आपको लो क्वालिटी वर्क के लिए यूज करना होता है, दे यूज द क्लैंप बर्निंग प्रोसेस। मतलब जहाँ पे कहीं पे कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए आपको बनाना है, या फिर बस बाउंड्री वॉल देना है जहाँ पे उतना स्ट्रेंथ आपको मैटर नहीं करता है, देन यू कैन यूज द क्लैंप बर्न ब्रिक। इज इट क्लियर? See, this is the मैम इसमें structure of, टेम्परेचर भी तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर कुछ सकते नहीं उसमें। कंट्रोल कर सकते, वही तो मैं बोल रही हूँ, नथिंग कैन बी कंट्रोल्ड इन ए क्लैंप बर्निंग, neither the rate of burning nor the rate of fuel supply nor the temperature, nothing you can control। एक बार आप बंद कर दिए ना, यहाँ पे देखो ये जो एक्स्ट्रा लेयर आपको दिख रहा है, ये मिट्टी का लेयर, आधा लेयर है, इसको आप बंद कर दिए कंप्लीटली, ठीक है। सीधा जाके 2 मंथ तक इसको पूरा कंप्लीटली बंद करना है, 1 to 2 मंथ। फिर क्या करना है, 1 to 2 मंथ लग जाता है इसको कूल होने में, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ आप इसको टच भी नहीं कर सकते। 1 डेढ़ महीना ये जला होगा, कितना हीट होगा समझ रहे हो ना। फिर उसको 1 डेढ़ महीना छोड़ दिया जाता है फॉर कूलिंग, उसके बाद ही आप इसको टच करके इसको जो भी निकालना है निकाल सकते हो। सो इट्स टू टाइम टेकिंग बट इट्स इकोनॉमिकल। अगर आपको बहुत टाइम है, नेक्स्ट ईयर आपको बस, नॉर्मली गांव में ही यूज होता है, जो लोग खुद का घर खुद बनाते हैं, ब्रिक्स वगैरह वो लोग खुद ही बनाते हैं, फॉर देम दिस इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट इज टू इकोनॉमिक। आप खुद के लिए खुद ही बना सकते हो, मतलब जो लोग गांव में अपना घर खुद बनाना चाहते हैं, या फिर जो रिमोट एरिया है जहाँ पे ये मशीन वगैरह नहीं जा सकता है, वहाँ पे ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम इज नॉट ए कॉन्स्टेंट, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होता है। सो इन दैट केस यू कैन अडॉप्ट दिस। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे ग्रेजुअल बर्निंग एंड ग्रेजुअल कूलिंग होता है, मतलब सडन आपको उसको नहीं बंद कर रहे हो, धीरे धीरे उसको पका रहे हो, फिर वो धीरे धीरे कूल होता है, तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा आता है, याद रखना। द स्ट्रेंथ विल बी हायर बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल बर्निंग एंड ग्रेजुअल कूलिंग। It is too cheap and economical, and you don't need any skilled labor to prepare the clamp setup. Okay, but disadvantages बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैं एक्सप्लेन किया आपको, ओवरबर्न हो जाता है नीचे ऐसे, हाँ, और ऊपर आपका अंडरबर्न हो जाता है, उसका कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं आता है, तो उसका शेप में भी थोड़ा लूज हो जाए, मे भी उसका शेप बहुत ज्यादा सिंक हो जाए, कुछ नहीं कर सकते आप। आफ्टर 4 years जो भी है, सॉरी 4 months, आप देख सकते हो कि उसमें क्या चेंजेस हुआ, राइट। और ये मानसून टाइम में तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, एक बार बारिश हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर गया। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट क्लैम्प बर्निंग में? क्योंकि कब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 2018 या 19 में ये आया था क्वेश्चन, डिफरेंशिएट क्लैम्प बर्निंग एंड क्लीन बर्निंग। ओके, क्लैम्प को समझ में आ गया तो क्या होता है यहाँ पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर। एक क्लैम्प जो है एक ही बार यूज होता है, यूज हो गया उसको तोड़ना होता है आपको टू एक्सट्रैक्ट द ब्रिक्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट आप आ जाओ किल्न बर्निंग।
ये जो किल्न बर्निंग होता है ये आपका एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, ओके। और ये जो किल्न भी होता है ये 2-3 टाइप का होता है। तो बेसिकली वी हैव कंसीडर 2 टाइप, इंटरमिटेंट किल्न, कंटिन्यूअस किल्न। देखो ये जो किल्न मतलब क्या है, ये आपका जस्ट लाइक ए बिग साइज ओवन। तो कुछ ओवन होता है जैसे हमारा माइक्रोवेव होता है, उसमें क्या है आप एक चीज रख दिए अंदर, ठीक है, एक चीज आप अंदर रख दिए तो जब तक वो कम्प्लीटली पक नहीं जाता आपको वेट करना होता है, फिर उसको निकालो, फिर आप दूसरा चीज रख सकते हो। ये होता है ना आपका, मतलब एट ए टाइम, मतलब एक खत्म हो गया तो रोटेट नहीं होता है वहां पे, समझ रहे हो। एक चीज आप उसके अंदर रखे हो तो आपको वेट करना होगा until complete कुकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। एग्जैक्टली वही सेम इंटरमीडिएट स्किल। एक बार आप ब्रिक को रख दिए गर्म होने के लिए, वहां पे बर्न होने के लिए, जब तक वो बर्न नहीं हो जाता आपको वेट करना है। वो बर्न हो गया, सारा ब्रिक्स निकालना है, फिर आपको दूसरा स्टेप देना है। दिस इज द इंटरमीडिएट स्किल। ये समझ में आ रहा है इंटरमीडिएट मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, एक बार रख दिए उसको 2-3 दिन लग जाएगा बंद होने में, पूरा छोड़ दो, 2-3 दिन और कुछ नहीं काम कर सकते, बैठ जाओ, ठीक है। 2-3 दिन बाद उसको अनलोड करो, फिर एक नया सेटअप वहाँ पे लोड करो, नया सेटअप ब्रिक, राइट। तो यहाँ पे ओब्वियसली क्वालिटी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ बैलेंस हो सकता है, बट प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। ओब्वियसली आपका स्लैब से फास्ट होता है क्योंकि ये 2-3 दिन में गर्म हो जाता है और 2-3 दिन में आपका काम हो जाता है, राइट। बट कंटिन्यूअस स्किल में क्या है, ये कंटिन्यूअसली चलेगा, जस्ट लाइक योर कन्वेंस, जस्ट लाइक योर कन्वेंस। अच्छा इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। इंटरमीडिएट स्किल जो होता है ये 2 टाइप का होता है। जहाँ से फ्यूल आप ऊपर से सप्लाई करोगे, फ्यूल मतलब यहाँ पे हॉट एयर है, ठीक है, हॉट एयर एंड कोल्ड गैस। तो अगर आप ऊपर से उसको ओपनिंग अगर ऊपर है, ठीक है, ये जो स्किल है ओवन जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ में से आप नीचे से यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर रहेगा जहाँ से आपका सीट जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ब्रॉट, अप ब्रॉट, ओके। अगर आपका जैसे माइक्रोवेव में जो तंदूरी वगैरह बनाते हैं वहां पे होता है, ऊपर से भी आपका आग आता है, दैट इज योर डाउन ब्रॉट। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्यूल सप्लाई, इफ वी आर सप्लाइंग द फ्यूल फ्रॉम डाउन साइड, फ्यूल जब डाउन साइड से होगा उसको हम लोग अप बोलेंगे क्योंकि फ्यूल आपका अपवर्ड जाएगा, याद रखना, ठीक है। जब फ्यूल ऊपर से देंगे मूवमेंट डाउनवर्ड होगा, दैट इज नोन एज डाउन ब्रॉट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो डाउन ब्रॉट किल्न है दे आर मोर एफिशिएंट, ओके। वहाँ पे आपका बर्निंग बहुत इजीली होता है, राइट। और इसका फ्यूल कंट्रोल करना इजी होता है क्योंकि ऊपर से होता है और ऊपर से आप कंट्रोल कर सकते हो। ग्राउंड लेवल में होता है तो आपको अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाना होता है तो कंट्रोल द फ्यूल। तो डाउन ब्रॉट सॉरी जो अप ब्रॉट है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो जनरली वो प्रीफर डाउन ब्रॉट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, डाउन ब्रॉट मतलब फ्यूल सप्लाई विल बी फ्रॉम अपसाइड, डाउन ब्रॉट मतलब अपसाइड से फ्यूल आप दे रहे हो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट्स व्हाई इट इज डाउन ब्रॉट। अप ब्रॉट मींस डाउन से फ्यूल दोगे और वो अपवर्ड मूव करेगा, दैट्स व्हाई इट इज अप ब्रॉट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? अपडेट डाउनवर्ड, अपडेट मतलब अप से फ्यूल नहीं आता है, फ्यूल नीचे से दिखते हैं, वो अपवर्ड मूव करता है, दैट्स व्हाई इट इज अपवर्ड, ओके। एंड डाउनवर्ड इंटरमिटेंट स्किल इज मोर एफिशिएंट देन अपवर्ड। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाओ कंटिन्यूअस स्किल। कंटिन्यूअस स्किल में आपका कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है, मतलब जहाँ पे आप एक यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं, देख लो। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस स्किल यू हैव मेनी चैम्बर्स, ओके। तो सपोज आप यहाँ पे देखो वन जो है, वन पे आप ब्रिक लोड कर दिए, ओके, इट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिंबल थोड़ा ऑपोजिट दे दिया है, यहाँ पे देखो वन में ये वन हो गया, ठीक है, इसमें आप ब्रिक को लोड कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट ये चला जाएगा 6 में, 6 में मतलब ये जो एरो है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखो, 1 के बाद 6 है। 6 में क्या होगा आपका ड्राई हीटिंग या फिर प्री हीटिंग, उसमें हॉट एयर दिया जाएगा, ठीक है। 5 में क्या होगा, बर्न होगा, वो जो ब्रिक है वो बर्न होगा। तो इस टाइम जब ये आगे आगे मूव करते जा रहा है ना,
जब 1 से 6 में आपका ब्रिक मूव कर गया, यू कैन अगेन लोड न्यू बैच ऑफ ब्रिक एट 1। तो कहीं पे भी यहाँ पे आपका प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। एक बार आप लोड कर दिए, वो धीरे धीरे आगे चला जाता होगा और एक में फिर आपको नया नया लोड करना होगा। तो ये प्रोसेस बहुत कंटिन्यूअसली होता है। ओके, सो दैट विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में ब्रिक मिलता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा देख लो, एक यहाँ पे जो 1 नंबर चैम्बर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोड करोगे ब्रिक, वो 6 में चला जाएगा फॉर द प्री हीटिंग, फिर 5 में जाएगा फॉर द बर्निंग, फिर 4 में जाएगा फॉर द कूलिंग, 3 में अनलोडिंग होगा, जो 2 है वहां पे उसको एम्प्टी, मतलब ये स्टैंड बाय होता है। ओके, ये जो 2 है वो स्टैंड बाय। एग्जैक्टली एट टाइम आपका 2 बैच चलते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बुल ट्रेंच स्किल। जो कंटिन्यूअस स्किल ये फिर 2 टाइप का होता है, एक होता है बुल ट्रेंच, दूसरा होफमैन। तो ये जो बुल ट्रेंच स्किल है इसमें एट ए टाइम 2 बैच चलते हैं, ठीक है। और ये आपका अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, रिमेंबर दैट इट इज एन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। बुल ट्रेंच स्किल लीजिए, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, ऊपर आपको बस चिमनी दिखेगा, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर आप कंप्लीटली देख सकते हो, अभी जो कोई पूछ रहा था मेरे को, इट इज अ होफमैन स्किल। वो पूरा स्ट्रक्चर आप बाहर से देख सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Main difference between bull trench kiln and Hoffman kiln is bull trench kiln underground होता है, और बिकॉज ये अंडरग्राउंड होता है तो उसका एक परमानेंट रूफ नहीं होता है। बट होफमैन किल्न ये एक पूरा परमानेंट बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है विद ए परमानेंट रूफ। तो सबसे एफिशिएंट वन फॉर द बर्निंग इज होफमैन किल्न बर्निंग, कंटिन्यूअस बर्निंग। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूअस बर्निंग होता है विदाउट एनी इंटरप्शन। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, लोडिंग अनलोडिंग एंड ऑल। इसका डिटेल नहीं चाहिए यहाँ पे, 12 चैम्बर से आपको हर एक का याद रखना होगा, तो इसलिए मैं इसको ओमिट कर दूँ, नहीं है ये आपके सिलेबस में। बस डिफरेंशिएट यहाँ पे करने आ सकता है। हाँ, ये बुल ट्रेंच के एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इसका पूरा डिटेल में लिख दी हूँ। हाँ मैम, जो इसका लेंथ कितना होता है, जो प्रोसेस हो रहा है जो 1 से 6 तक, उसका कन्वेयर का लेंथ कितना होता है? ये डिपेंड करता है, राइट। मतलब आप ऐसे, मतलब रूम आपका साइज कितना बड़ा होगा ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हो ना। तो एग्जैक्टली ये सेम है, आप कितना बड़ा चाहते हो उसी हिसाब से बना सकते हो, राइट। इसका साइज ना पूरा सिलिकॉन, आप आए हो कैंपस, सिलिकॉन कैंपस देखे हो ना आप Yes. लोग, Yes, ma'am. इतना बड़ा भी हो सकता है, एक स्मॉल रूम के साइज का भी हो सकता है। तो आपको अगर खुद के लिए बनाना है, राइट, मतलब बस 2-3 साल के लिए आपको ये प्रोसेस करना है, तो एक स्मॉल साइज बना सकते हो। अगर आपको पूरा ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही सेटअप करना है ना, तो बहुत बड़ा साइज का आप बना सकते हो, उसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। बस स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस। अगर आप अंडरग्राउंड बनाते हो इट विल बी बुल ट्रेंच, और उसका साइज जो है आइदर रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, ये इलिप्टिकल में शो की हूँ, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, और ये होफमैन जो है ये आपका पूरा सर्कुलर होता है, होफमैन। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये पूरा ऐसे बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये होफमैन। इसमें आप पूरा कंप्लीटली मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो होफमैन में। इसमें भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट इसका एक परमानेंट रूफ नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा रेनी सीजन में दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, या फिर कहाँ पे किसी को कुछ कंफ्यूजन बर्निंग में, यू कैन आस्क। कहाँ गया बर्निंग स्टार्ट? यस, क्लैम्प किल एंड ऑल। यहाँ किसी को कहीं पे कुछ कंफ्यूजन, यू कैन आस्क। No, ma'am. Okay, here I have mentioned the difference between clamp burning and kiln burning, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार इसको बस देख लेना। जैसे मैं बोली थी, क्लैम्प इज टेम्पररी स्ट्रक्चर, किल्न इज ए परमानेंट स्ट्रक्चर। डेली आउटपुट क्लैम्प का कम होता है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी, इसमें 60% तक ऑलमोस्ट अच्छा क्वालिटी मिलता है, लेकिन इसमें 90% आपको गुड क्वालिटी ब्रिक्स मिलेंगे, राइट। फायर का रेगुलेशन क्लैंप में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्लीन में कंप्लीटली आपके कंट्रोल में होगा। कॉस्ट ऑफ कंजप्शन इन केस ऑफ क्लैंप इज टू लो, बट इट इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ किल्न बर्निंग। ओके, इसका जो पीरियड जो है टोटल टाइम टेकिंग और बर्निंग पीरियड, इट इज 2 to 6 months। जैसे मैं आपको बोली, पहले कूल पहले बर्न करना है 2-3 months,
फिर कूल करना है 2-3 मंथ, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ लग जाता है। ये आराम से आपका 10 to 12 डेज में आपको मिल जाता है। ओके, और ये जो अप्रोक्समेंट का मैं बात कर रही थी, ये तो 2 डेज में मिल जाता है दिस वन। ये 2 डेज में, एक दिन आपका बंद होता है, दूसरा दिन कूल हो जाता है, तीसरा दिन आप इसको निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्री फैब्रिकेशन और प्री फैब्रिकेबिलिटी। मतलब जब स्मॉल क्वांटिटी चाहिए देन यू कैन गो फॉर क्लैम्प, बट अगर यूज चाहिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द किल बर्निंग, क्योंकि 6 मंथ तक वेट करो, वो भी बहुत छोटा सा बैच निकलेगा, तो दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रिक। वेस्टेज ऑफ हीट बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ क्लैम्प। क्लैम्प में आप पूरा इग्नाइट करके छोड़ देते हो 1-2 मंथ के लिए, इतना हीट आपका रेडिएट हो जाता है, बट बहुत कम वेस्टेज होता है इन केस ऑफ किल बर्निंग। ओके, इन केस ऑफ क्लैम्प यू डोंट नीड एनी सुपरविजन, बट इन केस ऑफ किल बहुत प्रिकॉशंस आपको लेना होता है, स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए। ओके, इज इट क्लियर? एंड इन केस ऑफ क्लैम्प आप ओनली उसको, हाँ आप ओनली उसको बर्न कर सकते हो, बट इन केस ऑफ किल आप उसको ड्राई भी कर सकते हो, उसमें बर्न भी कर सकते हो। So no extra drying operation is needed for kill burning. Is it clear? Yes, ma'am. Clear है? ओके, तो यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर। जो टोटल इतना लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के समझने के लिए इतना डिटेल में लिख दी हूँ। एक बार पढ़ना है, समझना है, उसको ब्रीफली लिखना है एज पर 16 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन। 16 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन कितना लिखना है आपको? मैक्स 3 पेजेस मैक्स, राइट? तो 3 पेजेस में टोटल आप कैसे लिखोगे, ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, किसी को कुछ डाउट है? असाइनमेंट हो जाएगा? यस मैम। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस।